सिंह जी प्लीज आए और अपना कीमती वक्तव्य, बहुमूल्य वक्तव्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। सर, डॉक्टर संतोष कुमार सर। हेलो, हेलो, Dr. Santesh sir, your voice is not coming properly. Sir, please once check your sir. Audible? No sir, sir, your voice is coming sir. Please continue. Okay. Thank you sir. Okay. Thank you, VC Pandey sir, for your introduction. And this is what I was telling. A lot of things have already been, covered in last two presentations and lectures given by Narendra Arya sir and VC sir. Both of them have covered almost all the important aspects of national security and the issues raised by COVID-19. So first of all, I would like to thank to organizing committee of the college, SKR College, who have given me this opportunity to speak in this much regarded and enlightened seminar. And the VC sir, Ranjit Kumar Verma sir, and the principal sir, Naval Prasad sir, who have been so kind to give me this opportunity to share my ideas and thoughts on basically this very pertinent topic, redefining national security in the time of pandemic. And I also like to thank conveners Upendra Prakash Das sir and Vidya Prakash Maurya and other members of organizing committee. With this, I would like to start my presentation. Vidya, should I share my PPT? Will that be okay? Dr. Vidya Prakash? Hello, Vidya, am I audible? Yes sir. You are audible, sir. So please continue. Am I able to share my screen? Are you able to? Sir. Okay. That's good. Okay. This is the topic I am going to speak on. So this technology sometimes make us helpless. This is the topic I'm going to speak on: infectious diseases, national security, and globalization. Right? So yeah, this is the introduction I am going to start with. Modern day public health challenges have evolved from the local, national, and regional into global issues. This is what VC sir have already mentioned in his very important speech.
कि ग्लोबल हेल्थ बेसिकली आज के टाइम में, आज के कॉन्सेप्ट में, this is not basically a local issue or national issue, basically or regional issue. It is a global issue. It has become global issue. क्यों? क्योंकि there are several reasons for that. Later I'll explain all those reasons. Health issues are among the key challenges to every society and have political and cross-sectoral ramifications. Earlier it was very much known health is something which is very much related with health practitioners and medical sector. But that is not the reality in this 21st century. Health is an issue which is related with every aspect of society. That is what need to be known by each one of us. And this is what we need to pay attention on. If you're not paying that, we're going to suffer a lot, which like we are already experiencing the same problem during this COVID-19 period. Before going into that, I would like to explain what national security is. National security, there are two different aspects, conventional and non-conventional. In conventional, the conventional national security includes basically diplomatic and military security to maintain the sovereignty and integrity of the country. And non-conventional security includes defense against threats like economic disorders and communicable diseases breaking out any part of the world, like we are experiencing in this COVID-19 period. And a whole range of diverse global issues have raised the highest level of political concern, promoting governmental and international institutions to tackle such health threats through the prism of security, be it national security, biosecurity or human security. Means जो टोटल आज सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है उसको हम पूरा होलिस्टिक वे में देखे जाने की जरूरत है. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. इट शुड बी नेशनल सिक्योरिटी, बायोसिक्योरिटी या ह्यूमन सिक्योरिटी. इसको आप प्रिज्म ऑफ सिक्योरिटी से देख सकते हैं. ये सुरक्षा का ही मुद्दा है. You can't differentiate, you can't separate on the basis of different points. Over the past 2 decades, all the nations have renewed its efforts to address large-scale health incidents that have threatened national security, such as HIV/AIDS, disease outbreaks, and bioterrorism. क्यों मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2 डिकेड की? आप 1990 के दशक के बाद जब से ह्यूमन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट सामने आया, यूएनडीपी ने रिपोर्ट प्रोड्यूस किया था ह्यूमन सिक्योरिटी का, उसमें क्लियरली बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर different, separate from human security. Human security and national security both are interconnected, interrelated, and we have to see the entire concept as one. आप चाहे कह सकते हैं आप पर्सनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है, और there are so many other aspects of security which can be seen in the prism of security. और नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में ही देखा जाना चाहिए. इसको उसके बियॉन्ड देखने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा देखेंगे तो ज्यादा सफर करेंगे. ऑब्जेक्टिव विल बी द सेम. Infectious diseases can challenge national security in many ways, like increased rates of morbidity and mortality, and massive damage on public health and health infrastructure, political instability and economic volatility. These are the issues we can see in the case of infectious diseases. And infectious diseases are caused by pathogenic microorganisms such as bacteria, viruses, parasites, and fungi. The diseases can be spread directly or indirectly from one person to another. Infectious diseases are non-traditional threats, have the capacity to overlap borders and fences, camouflage in the midst of modernity, urbanization, and technology, threatening powerful governments and international institutions, making the helpless millions its victims. This is what we are suffering through. कहा जाता है ना, infectious diseases एक ऐसा non-traditional security threat है जिसकी कैपेसिटी है किसी बॉर्डर को, किसी फेंस को क्रॉस कर सकता है और क्रॉस कर रहा है. बेसिकली इन द मिड्स ऑफ मॉडर्निटी, जब आधुनिकता की बात की जा रही है, वैश्वीकरण की बात की जा रही है, शहरीकरण की बात की जा रही है, तकनीक इतनी एडवांस हो गई हो, तो उस दौर में बेसिकली ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह डिजीजेज को बॉर्डर क्रॉस करना और स्प्रेड होना. जैसा ऐसा एक एग्जांपल है, सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन पास्ट एंड स्टिल वी आर गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम, crisis. Rise of diseases across the globe. Here I am going to show a figure which shows how the different disease outbreaks happened during 2002 to 2015. आप इसमें देख सकते हैं कैसे बहुत सारे वायरस तेजी से एमर्ज किए हैं. जैसे आप सार्स देख लीजिए, स्टार्टेड इन चाइना 2003. जाइका वायरस रहा, कोलेरा रहा, जाइका वायरस, इबोला,
चिकनगुनिया, H1N1 influenza रहा, measles रहे, MERS रहा. There are so many things. There are so many cases have risen up in last few years, which has damaged the entire global security. तो कहने का मतलब है COVID-19 is not only the case which is happening in last 20 years. We have experienced several times such outbreaks which are threatening our national security and global security at the time. Spread of diseases across the globe. ये देख लो, आप मैप में देख सकते हो कैसे आप साउथ इंडिया से लेकर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इन एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड यू कैन सी द आउटब्रेक्स हैव टेकन प्लेस. आप देखिए, जहां भी देखेंगे, आप देख रहे होंगे इस फिगर में, मैप में हर जगह आपको सारा आउटब्रेक दिख रहा होगा. इबोला का रहा है, इन्फ्लुएंजा का रहा है, लाशा फीवर रहा है, मंकी पॉक्स रहा, नीपा रहा है. देयर सो मेनी outbreaks we have experienced in past, which are threatening basically global security and national security too. Globalization, this is what a very helping factor which is helping basically diseases to become a global problem, a global threat. The simple definition of globalization is a process fueled by and resulting in increasing cross-border flows of goods, services, money, people, information, and culture. At the same time, I would like to say here or add here is free flow of not only goods, services, money, people, information. It is also free flow of diseases too across the border. The dimensions of globalization can be seen in basically economic, political, socio-cultural, technological. This is what very known definition, but this is not limited with actually, limited to. It has a lot of things within it. So national security and infectious diseases, the first development that began to bring health and security together was the general broadening of security studies in the 1980s, first half of the 1990s, through which analysts began to consider non-military security threats such as environmental scarcity and degradation, the spread of disease, overpopulation, mass refugee movements, nationalism, terrorism, and nuclear catastrophe, which already been discussed by Vice Chancellor Sir. He accidentally narrated almost all the points in his very important speech. The development of infectious disease, national security linkage in the 1990s flows from four important causes. चार important जो cause हैं, कारण हैं, उसमें है the devastating scale of the HIV/AIDS pandemic in developing world. आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं किस तरह से HIV/AIDS 1980 के दशक के बाद से एक ऐसा भयानक रूप धारण किया जिसके कारण से बहुत सारे देशों में बहुत बड़े स्तर पे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस राइज हुए. आप यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, बहुत सारे ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर लगभग 30 से 40% पॉपुलेशन HIV/AIDS इन्फेक्टेड रही है. तो कहने का मतलब वहां की कंट्री तो सिर्फ इसी फाइट करने में लगी रह गई कैसे डिजीज से छुटकारा पाए. तो कहने का मतलब दैट हैज बिकम अ ट्रेंड ग्लोबली कि हर देश इसको कंसीडर करने लगा एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में. द रिकॉग्निशन ऑफ दिस ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ emerging and re-emerging infectious diseases. This is the second point I am narrating here कि मतलब जो emerging और re-emerging infectious diseases है, इसके बाद से HIV/AIDS केस के बाद से सबने अपने नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन में इसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया. That is what can be called important milestone point था जहां पे HIV/AIDS को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में कंसीडर किया गया. और साथ ही साथ उसके बाद जितने भी डिजीज राइज किए, इमर्ज किए, उन सबको नेशनल सिक्योरिटी के पैरामीटर के अंदर ही देखने की कोशिश की जाने लगी. और ये बेसिकली पॉलिसी मेकर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर्स उसको एक इंपॉर्टेंस देने लगे. द थर्ड पॉइंट, renewed concerns about the proliferation of biological weapons by states. For example, anthrax attacks in United States in 2001. 2001 का आपको सबको केस पता होगा किस तरह से एंथ्रेक्स अटैक हुआ था जब क्लिंटन थे वहाँ प्रेसिडेंट, और उनके एक लिफाफे के अंदर बना के भर के भेजा गया था उनके यहाँ, और बाद में चेक किया गया तो उसके अंदर एंथ्रेक्स था. एक बायोलॉजिकल वेपन तरह से यूज किया जाने लगा. एंड दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट which is happening. Even the case of COVID-19, we are experiencing the same. A lot of countries are saying this is what happened by China. China ने किया है, वुहान में हुआ है, एक प्री प्लान है. And Chinese group is saying this is what happened because of US. US ने चाइना में लाया और चाइना का नाम बदनाम किया है. There's game, the blame game is going on. All the countries are blaming to each other. But the problem, the issue is all the entire humanity is suffering of this COVID-19 crisis. This is what we have to understand. This is what we have to keep in our mind, because the global community is being threatened by this COVID-19.
The last point, increased fears about the use of biological weapons by terrorists. This is another important question we have to understand. Terrorists are the biggest non-state actor, basically, who are threatening the global security. और बेसिकली जब ये टेररिस्ट और बायोलॉजिकल वेपन्स दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़े लेवल पे समस्या खड़ी होगी, बहुत बड़े लेवल पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जो पूरे मानवता के लिए बड़ी इशू होगी। आज एक छोटा कोविड-19, छोटा क्या बहुत बड़ा है बेसिकली, लेकिन अगर इसको सोचिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज करने लगे, उनके हाथ में इस तरह से टूल लग जाएं जहां उनको वेपन्स की जहां उनको न्यूक्लियर वेपन्स की यूज करने की जरूरत नहीं पड़े, से बायोलॉजिकल वेपन्स यूज कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे सेवरल केसेस वी हैव फाउंड इन इंडिया टू, जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने HIV एड्स को एक अपने टूल के रूप में यूज किया। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाइए, जब 1990 के दशक में वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ISI स्पॉन्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने किस तरह से HIV को स्प्रेड करने का काम किया, डिस्टेबलाइज करने का काम किया है पूरे यूथ को, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और पंजाब में तो हम देखते ही हैं, पंजाब का इशू हमारे सामने है। An analysis of national security historically paid no attention to public health. पहले ये होता था हिस्टोरिकली नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ दोनों अलग विषय माने जाते थे, बस ऐसा अब नहीं है। Although biological weapons have been on the national security agenda of states since at least the prohibition of use of biological weapons in 1925. 1925 में ही बायोलॉजिकल weapons को ये माना गया था कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, इसलिए एजेंडे के रूप में 1925 में इसे प्रोहिबिट किया गया था, मना किया गया था, कोई भी देश बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाएगा क्योंकि इससे पूरे मानवता को खतरा हो सकता है, किसी एक देश की बात नहीं। अगर ये आज जैसे कोविड-19 मैं बोलता हूँ, क्यों कौन सा देश नहीं सफर कर रहा है? ऑल द कंट्रीज आर सफरिंग across the globe, almost more than 200 countries, obviously declared in 193 countries, and a few other territories are also suffering with this COVID-19. Following World War II, worldwide perceptions of national security was largely restricted to the military defense of territorial borders and interests. These perceptions were not much different from concepts of security prior to that war. वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरी दुनिया में देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी का जो रिस्ट्रिक्ट किया गया था, मिलिट्री डिफेंस ऑफ टेरिटरी बॉर्डर्स एंड इंटरेस्ट, वो बहुत डिफरेंट था। कन्वेंशनल डिफरेंट एक जो मॉडल ऑफ सिक्योरिटी था उसी दायरे में रह के देखे जाने की कोशिश करते थे कि आप आर्म्स बढ़ाओ, बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करो, मींस पूरा एक कन्वेंशनल फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी देखे जाने की कोशिश की गई थी, जो धीरे धीरे आके 1994 में आप देखिए द UN development program wrote of a transition from nuclear security to human security, meaning safety from hunger, disease, and repression. This is what also being considered by national security policy makers कि hunger, disease और repression भी एक national security challenge का कारण बन सकता है या challenge बन सकता है। In that case, we have to include all these issues while we draft national security policies for any country. तो ये पहली बार हुआ जब माना जाने लगा। आपको बताएं, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सैमुअल आर बर्गर स्टेटेड दैट इफ नेशनल सिक्योरिटी infectious diseases creates instability, chaos, conflict and war, then undoubtedly it has national security implications too. उन्होंने बोला कि अगर आज आप कोविड-19 का एग्जांपल ले लो, किस तरह से इंस्टेबिलिटी, केओस, कॉन्फ्लिक्ट एंड वार की कंडीशन पैदा कर दिया है, आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। आप चाइना के एग्जांपल लीजिए, चाइना में किस तरह से चाइना ये पूरे डाइवर्ट, पूरे नरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहा है चाइना। आज पूरा साउथ चाइना में इंक्रूजमेंट हो रहा है, इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, ताइवान के साथ चल रहा है, हांगकांग प्रॉब्लम है, साउथ कोरिया प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना का जापान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, मंगोलिया के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, लॉट ऑफ कंट्रीज, इवन मलेशिया और फिलीपींस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वियतनाम के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर व्हिच आर एक्सपीरियंसिंग द हीट ऑफ दिस कोविड-19 पीरियड और क्राइसिस। कैसे कोविड-19 जो पूरा इशू चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है चाइना। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इवन यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएस। कोविड-19 जो बेसिकली स्प्रेड है वो नेशनल सिक्योरिटी अटैक है यूएस सिक्योरिटी के ऊपर, इसलिए हमें चाइना के साथ किसी तरह का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है। यहाँ तक कि WHO के साथ अपना रिलेशन उन्होंने ब्रेक कर लिया, अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। that shows how these kind of non-conventional issues can become a prominent issue in basically global politics or global security narrative. The US Government Accounting Office 2008 P2 clearly stated that infectious diseases pose a substantial direct and indirect threat to US national security and interest. Yeah. Vidya, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Please continue, sir. Okay.
Following that view, on June 12, 2002, Congress passed the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act. This is very important. First time a country have adopted or passed an act on that Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act. First time adopted by the the Congress and passed by Senate, requiring a specific action related to bioterrorism preparedness and response. This act is also useful for detecting and responding to natural infectious disease outbreaks. First time in that report, in that it clearly mentioned natural infectious disease outbreaks should also be considered as a national security threat. Infectious disease affects individuals and also weaken public confidence in government's ability to respond. They have an adverse economic impact, undermines a state's social order, catalyze regional instability, and pose a strategic threat through bioterrorism and biowarfare. This is what the statement was quoted in that act, basically. And this is what we can see: public health, infectious diseases, and national security intersectionality. Like public health, you can see within both are interconnected. Public health and national security. You can't differentiate these two. The public health or infectious diseases, national security linkage attempts a generous overlap that includes both biological weapons and infectious disease threats, which produces a broad conception of public health security. This is very much important. For example, biological weapons and naturally occurring infectious diseases. Then a narrow notion, biological weapons only. Earlier it was being considered what I was talking a few minutes back, like in 1925, countries were agreed not to go for biological weapons, but now they have expanded that. Means any kind of threat, like naturally occurring infectious diseases, should also be included within that biological weapons. So here I'm going to explain few national security, infectious disease, and globalization, the concept, the intersectionality and the connectivity. Traditionally, the link between infectious disease and security have often focused on the effect of health on military. COVID-19 is flu, malaria, yellow fever, HIV/AIDS. The threat of emerging infectious diseases to a country's internal security is one product of the globalization process. This is important. Emerging infectious diseases to a country's internal security globalization process means globalization process ने internal security के लिए एक बहुत बड़ा threat के रूप में emerging infectious diseases को सामने लाके खड़ा कर दिया है, जो कि हम महसूस भी कर रहे हैं. सिर्फ internal security नहीं, बल्कि beyond the internal security, it has been threatened by basically emerging infectious diseases. UNDP report on human security redefined the concept of security. UN Commission in its final report, I'm going to read few of things जहां इसकी बात चर्चा की गई. 1994 में चर्चा की गई, 2001 में चर्चा की गई इसकी. According to Kofi Annan, peace means much more than absence of war. Means that war ना होना ही peace नहीं है. It's more than that. Human security must encompass economic development, social justice, environmental protection, democratization, disarmament, a respect for human rights and the rule of law. मुझे लगता है वीसी साहब इन सब बातों की बात कर रहे हैं थोड़ी देर. इन सब चीजों की, इन्हीं इश्यूज को उन्होंने अपने लेक्चर में इंक्लूड किया कि बहुत ब्रॉडर नैरेटिव है नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, उसको उसी दायरे में देखा जाना चाहिए. उसको बहुत ज्यादा नैरो करके देखने की जरूरत नहीं है. ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिजीजेज आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द globe and all countries are vulnerable to public health emergency. A health crisis in one country can easily affect economies and livelihoods in other countries since diseases have no borders. This is what we can see in the case of COVID-19. The first case reported in December month, 31st December in Wuhan, but within months the same has spread across the globe, and now more than 200 countries are being affected by COVID-19. This is what happening. This is what we need to understand. This is what I'm reading from the reports of 2001. Just imagine, I'm talking about 2002, 1 and 2. And this is what 2020, the same thing is happening. We were supposed to be prepared for that. Unfortunately, we couldn't get our preparedness done. That is what BC sir mentioned in his speech. कि आप पहले से तैयारी रखना है. आपके यहाँ बताया सर ने कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है इन्फेक्शियस डिजीजेस का जो काम करना बंद हो गया, जो कहा गया हमारे पास जरूरत नहीं है. That is much regarded, much needed. You can't say like that कि हमारे पास जरूरत नहीं है. It will be required always. So globalization has also increased countries' vulnerability and interdependence. According to WHO DG Margaret Chan, when the world is collectively at risk, defense becomes a shared responsibility for all nations. No country is protected from infectious diseases in order for states
to protect their populations and their national security interests. Here you can see the linkage between national security, infectious diseases, and globalization have been seen in last few decades. Globalization is a broader concept. Within that, we can see public health and national security and how these two are interrelated, interconnected. We can't differentiate, we can't separate these two. So within this globalized period, we have to see, we can see how these two are interconnected और जिसे हमें देखने की जरूरत है और देखा जाना चाहिए. एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कुछ इशूज है जिसको मैं चर्चा करना चाहूंगा. द शिफ्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिटी कैसे हुआ है. सिक्योरिंग द इंडिविजुअल वेलफेयर नॉट स्टेट. एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि राज्य की सुरक्षा ज्यादा हमें इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करना है. अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कन्वेंशनली हमें कहा जाता था कि स्टेट की सुरक्षा जो है वही होती सिक्योरिटी, वही होता नेशनल सिक्योरिटी. बट नाउ दैट हैज बीन चेंज. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इंडिविजुअल वेलफेयर एंड इंडिविजुअल सिक्योरिटी. The inadequacy of a territorial bounded state to address and readdress the problems posed by infectious diseases. ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है. आप across the globe, whether that is European Union, whether that is US or Japan or China or India and Brazil, all these countries have started including in national security policies. अब जो है Ministry of Health has become part of the policy making, national security policy making framework. That is what the new trend has started in global politics. Why infectious diseases, HIV/AIDS, and matter of concern to national security? McKinsey in 2009 clearly explained they pose a direct threat to the health and well-being of very people that states are there to protect. Direct mortality and morbidity. For example, COVID-19. आप COVID-19 एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, कनेक्ट करके देख सकते हैं किस तरह से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी तेजी से ग्लोबली बढ़ा है. ये डायरेक्ट थ्रेट है हेल्थ और वेलबींग का, आप एक स्टेट की जनता का, वहां के रहने वाले लोगों का. तो ये बहुत जरूरी है, वहां के लोगों को प्रोटेक्शन करना जरूरी है. अगर उनको आप प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं तो आपका नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पूरी तरह फेल हो जा रहा है. तो कहने का मतलब बॉर्डर पे लड़ाई हो, आपकी सीमा पर कोई हमला हो तभी आपकी सुरक्षा खतरा है, ऐसा नहीं है. ही हैज सेड कि नहीं, आपको अपने देश के अंदर ही जो लोग रहते हैं उनके हेल्थ और वेलबींग के बारे में चिंता करना पड़ेगा. अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आपका देश सुरक्षित नहीं है. कोविड-19 हमें इसको समझाया है, सिखाया है. ए पेंडेमिक में कॉज सोशल डिस्ट्रप्शन एंड थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट सब सहारन अफ्रीका. बहुत छोटा एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कैसे सोशल डिस्ट्रप्शन और थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट वी कैन एक्सपीरियंस द केस सब सहारन अफ्रीका. मैं यहाँ सब सहारन अफ्रीका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको केस पता हो शायद HIV/AIDS पूरे सब सहारन अफ्रीका को बहुत बुरी तरह से गिरफ्त ले लिया था, अभी भी लिया हुआ है. जहाँ पे सोशल डिस्ट्रप्शन अफ्रीका को बहुत बुरी तरह से गिरफ्त ले लिया था, अभी भी लिया हुआ है. जहाँ पे सोशल डिस्ट्रप्शन है, अभी बहुत सारे अनस्टेबिलिटी है, स्टेट में बहुत सारा केओस है, एनार्कियल कंडीशन है बिकॉज ऑफ HIV/AIDS, बिकॉज ऑफ दैट डिजीज. A large scale epidemic may also contribute to economic decline. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बहुत सारे इशूज में आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. इंडिया के एग्जांपल आपको देता हूँ, जहाँ हमारे यहाँ पहली बार प्लेग आया 1990s के दौर में, कि किस तरह से वहाँ सूरत से लोग माइग्रेट करने लगे अपने अपने राज्यों की तरफ, और पूरा सूरत की इकोनॉमी बंद हो गया. सूरत की पूरा गुजरात के अंदर उसका प्रभाव देखने मिला. एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा, मोर देन $20 बिलियन हमारा एक नुकसान हुआ उस पीरियड में. अब चाइना के एग्जांपल ले लीजिए, सार्स का. चाइना सार्स राइज हुआ 2002 में. एक साल लगभग चाइना ने सार्स को छुपा कर रखा, दुनिया से बताया कि दिस इज नॉट अ पैंडेमिक, और 2003 में बताया, और तब तक कितने बड़े स्तर पर वहां प्रभाव देखने लगा. 2003 में मानेंगे नहीं, चाइनीज कंपनी बंद हो गई, वहां पूरा स्टेट शटडाउन हो गया था और बहुत प्रभाव डाला चाइना पे. हांगकांग में भी सेम इस तरह का एक्सपीरियंस किया था इकोनॉमिक कंडीशन में. आप कोविड-19 में एग्जांपल मैं देता हूं, कोविड-19 ने इकोनॉमी किस तरह प्रभाव डाला है. दिस हैज बीन एक्सपेक्टेड मोर देन $2 ट्रिलियन का नुकसान होगा, और द वर्ल्ड बैंक ने 2006 में ही एक्सपेक्ट किया था कि नेक्स्ट आउटब्रेक जब भी होगा, बड़ा आउटब्रेक होगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 5% जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा. जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका happening even more than 5% has been observed till now. अभी तक, जबकि अभी आने समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मुझे लगता नहीं छुटकारा मिलेगा. तो इकोनॉमी जो पूरे ग्लोबल लेवल की है उस पर कोविड-19 का प्रभाव देखने मिल रहा है और उसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है. Military also gets impacted by diseases. For example, HIV/AIDS has been badly impacted. The compact readiness, military performance, moral and defense budget, peacekeeping missions, etc. आपको सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ. आज भी आप कोविड-19 के दौर में HIV/AIDS के केस भी है. HIV/AIDS में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट किए गए जब यूएस की मिलिट्री जो ऑपरेशंस थे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे बहुत सारे ज्यादा मिलिट्री जो
पर्सनल से अफेक्ट हुए थे HIV से। अभी कोविड-19 से इंडिया में बहुत सारे केस रिपोर्ट हुए जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं। कहने का मतलब आपकी मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, आपका पूरा ढांचा ही बिगड़ सकता है। वहां पे आपको बंदूक की, मिसाइल की और तोप की जरूरत ही नहीं है। वहाँ सिंपल सा है कि बायोलॉजिकल वारफेयर स्टार्ट कर दो, वहाँ लोग ऐसे इम्पैक्ट हो जाएंगे, वैसे लोग मरने लगेंगे और बहुत प्रभाव पड़ने लगेगा। तो कहने मतलब इट हैज इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट ऑन बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और apparatus बेसिकली। बायोटेररिज्म है द कैपेसिटी ऑफ ओवरकिल। ओवरकिल का मतलब हुआ पूरी जनसंख्या एक बड़े स्तर पर खत्म करने की क्षमता होती है बायोटेररिज्म। 1918 से 1920 में स्पेनिश फ्लू का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब यूरोप की लगभग 30 से 40% जनसंख्या खत्म हो गई थी। बहुत बड़ा एक सेटबैक था पूरे वर्ल्ड के लिए। उसी तरह सेटबैक आज हम आप कोविड-19 में भी देख रहे हैं। अभी तक कम से कम 6 लाख लोग मर चुके हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। आप 1.5 करोड़ लगभग लोग इम्पैक्टेड हैं। तो मतलब इसको आप छोटा नहीं कर सकते। अभी कोई दवा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है कब आएगी दवा। डिस्कोर्स बहुत चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे चल रहे हैं, वैक्सीन आएगा लेकिन हो नहीं पा रहा है। हेल्थ कैन बी कॉज अ माइग्रेशन व्हिच कैन लीड द वर्ल्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग सबसे बड़ा एग्जांपल कोविड-19 के दौरान देख सकते हैं कैसे भारत सरकार ने वंदे मातरम चलाया अपना ऑपरेशन, जिसके माध्यम जो बाहर रह रहे थे उनको वापस लाया गया। तो जो माइग्रेशन था, जो एक्सटर्नल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन की बात देखने को मिला, आपके देश के अंदर लोग कैसे माइग्रेट किए मुंबई से और बड़े बड़े शहरों, छोटे छोटे गाँव की तरफ वापस आए। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक का। तो ये कहने का मतलब दैट हैज आल्सो इम्पैक्ट ऑन बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी इशूज। ऑल दीज इशूज शुड बी कंसीडर्ड विद इन इट। एपेंडेमिक डिजीज और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर है, फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल इफेक्ट्स है। लेफ्ट साइड आप देखिए तो आपको देखिएगा एपेंडेमिक डिजीज, राइट साइड आप देखिए तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। मींस ऑल द इशूज आर बीइंग कनेक्टेड, रिलेटेड। आप इन चीजों को अलग नहीं कर सकते। एपिडेमिक डिजीज में पूरा कैपेसिटी है कि बैलेंस ऑफ पावर को पूरा चेंज कर दे, फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। डिजीज एंड आउटकम ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, बायोलॉजिकल वीपन्स है, मिलिट्री रेडीनेस है, डिजीज है, कॉन्फ्लिक्ट आउटकम है, अटैकिंग पब्लिक हेल्थ है। अब पूरे दुनिया की पब्लिक हेल्थ अटैक किया गया है बेसिकली डिजीज के द्वारा, बायोलॉजिकल वीपन उसको कंसीडर किया जाता है। अब मिलिट्री रेडीनेस कितना तैयार है इस कॉन्फ्लिक्ट आउटकम के लिए, जितना तैयारी आपकी रहेगी, जैसे कर सकते हैं मिलिट्री रेडीनेस का मतलब हथियार ही नहीं है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दैट इज नॉट ओनली बेसिकली द प्रिपेयर्डनेस ऑफ ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वॉर्स, कि मतलब आपके पास हथियार हैं, आपके पास वीपन्स हैं, आपके पास सैटेलाइट हैं, आपके पास मिसाइल्स हैं, आपके फाइटर जेट हैं। दैट इज नॉट ओनली प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस मीन्स आप कितना हेल्थ सेक्टर में कितने आप प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। अगर उसमें आप तैयार हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट आउटकम आपका सही रहेगा, नहीं तो आप बहुत बड़ा नुकसान झेल के जाएंगे और झेलेंगे भी। आप यहाँ देख लीजिए सिलेक्टेड डेफिनेशंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी एजेंडा, इसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कैसे कैसे इशू चेंज होता चला गया है। रियल पॉलिटिक्स से कॉमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, पूरा द एंटायर कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज्ड। The more general threat from infectious diseases proves harder to connect with real political perspective on national security. Public health, national security linkages poses two kinds of threats, direct and indirect. I'm going to read that too. The direct threat comes from pathogenic microbes invading a state through global travel and trade, undermining military, economic, and political capabilities, and thus the state's foundations of power. The second one is indirect. Indirect threat manifests itself when infectious diseases contribute to state failure in other regions of the world, causing military, political, and economic instability that adversely affects the strategic interests of other states. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि फर्स्ट बताता है डायरेक्ट से मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, दूसरा बताता है मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी पे लगाता है। मीन्स दोनों चीजें आपको देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। थ्रेट्स पोज्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीजेस टू नेशनल सिक्योरिटी, कौन कौन से threats posed किए जाते हैं infectious disease national security पे। I'm going to read. The infectious diseases poses a direct risk to a nation's security by threatening to sicken and kill a significant portion of country's population, which I've already mentioned. An outbreak of disease, even the perceived threat of an outbreak, have significant repercussions on trade and travel for the affected nations. And infectious diseases causes significant social disruption through fear and anxiety about a disease. And this is what we are experiencing in person. क्या सोशल डिस्ट्रप्शन कितना ज़्यादा है, फियर एंजाइटी कितनी ज़्यादा है, हम आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ एक आपके साथ फिगर शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कैसे प्लेग इन इंडिया द 1994 का केस है, नीपा केस का दिया गया है, मलेशिया में कैसे एक्सपीरियंस किया है, और एवियन फ्लू इन हांगकॉन्ग 1997 का केस है। इन सब केसेस में आप देखेंगे बताया गया कैसे वो आपकी पूरी इकोनॉमी को डीप इम्पैक्ट किए हैं। चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी बाय इन्फेक्शियस डिजीजेस, इसमें same again I'm not going to read that.
Just I'm skipping few of the slides. Steps to be taken against. Acha, this is what we have to understand. Steps to be taken against infectious diseases for national security. ऐसा है पूरी दुनिया में, बेसिकली मेजर कंट्रीज में, यूएस का एग्जांपल है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने किया है, जिसमें है थ्रेट अवेयरनेस है, इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस डिजीज रिलेटेड इंटेलिजेंस, रिस्क असेसमेंट्स एंड एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर थ्रेट्स, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग प्रोएक्टिव प्रिवेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन. ये सब चीजें ऐसी जिसके बारे में आपको बताना पड़ेगा लोगों को, सरकार को रेडी रहना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रखना पड़ेगा. सर्विलेंस एंड डिटेक्शन इंक्लूडिंग स्प्रेड वार्निंग एंड एट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी फॉर द पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. अच्छा, ये है ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी इशूज है, जिसको हम एक बड़े कॉन्सेप्ट में देखने की जरूरत है. मैं यहाँ पे आपको कुछ देख रहा हूँ. ये दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड टाइम टू टाइम. आप देखेंगे बहुत सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं. ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस है, हेल्थ इन ग्लोबल गवर्नेंस फॉर हेल्थ हो गया, फिर गवर्नेंस फॉर ग्लोबल हेल्थ हो गया. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे के साथ इनसर्किल्ड है, कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, लेकिन समय के अनुकूल बदलते चले जा रहे हैं. किसकी प्रायोरिटी कब है? ग्लोबल हेल्थ की प्रायोरिटी थी गवर्नेंस में पहले, फिर आया ग्लोबल गवर्नेंस में हेल्थ की प्रायोरिटी होगी. बाद में कहा गया गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हेल्थ के लिए. मींस दी चीजें बदल रही हैं. द एंटायर डिस्कोर्स हैज बीन चेंज्ड. जहां पर एक ग्लोबल हेल्थ का कोई एक इशू माना जाता था, गवर्नेंस की बात की जाती थी, आज गवर्नेंस को बोला ग्लोबल गवर्नेंस जो बेसिकली है, गवर्नेंस जो है ग्लोबल हेल्थ के लिए जरूरी है. अब हेल्थ नहीं रह गया गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस ग्लोबल हेल्थ के लिए जरूरी है. इसलिए पूरी दुनिया को एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ मिल करके चर्चा करना पड़ेगा. इसलिए समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी. और ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस हैज 3 मेजर डायमेंशंस: नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, and international human rights, humanitarian. This is what we have to understand. Global health governance में the national strategic है, the security aspect of health threats, especially in the area of biological terrorism, HIV/AIDS, pandemic influenza. Global health governance जो concept है, उसके अंदर भी इन चीजों को शामिल किया जाने लगा. डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाने लगी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात की गई, ह्यूमैनिटेरियन की, कि जो इस तरह के थ्रेट होते हैं बेसिकली वो किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं होती है. इन नेचर बेसिकली ग्लोबल थ्रेट और उसके लिए पूरी दुनिया को मानवता के लिए लड़ना चाहिए, मानवता को बचाने के लिए लड़ना चाहिए. आज डिजीज के खिलाफ जो आप कोविड-19 का एग्जांपल ले रहे हैं, आप देख लीजिए जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं आपसे इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट में, सब कंट्री ये नहीं बोल रहा कि मेरे लिए है. ऑल द कंट्रीज आर क्लेमिंग इफ दे आर गोइंग टू हैव दैट वैक्सीन इन द डेज टू कम, दे विल give that to all the countries, all the people across the globe. Means कहीं ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की बात की जा रही है कि हमें इस तरह आप देख लीजिए. आप यहाँ अभी आगे पॉइंट में ले आऊंगा, मुझे रिपीट. स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस, जो आप बात की रहा गवर्नेंस की, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस की, इसमें सबसे कोर में आप देख रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स है, WHO है, वर्ल्ड बैंक. मेजरली दीज 3 आर वर्किंग इन कोर बेसिकली इन द ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस. एंड इन सेमी पेरिफेरी यू कैन सी आपके बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे UNFPA है, ILO है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, IMF है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, UNDP है, UNICEF है, WTO. Means all these are in semi periphery. In periphery, there are several other important actors are there which are playing important role in global health governance to fight against basically infectious diseases. इसमें individuals हैं, social movements हैं, religious groups हैं, NGOs हैं, media है, means epistemic communities हैं, research institutions हैं, transnational communities हैं. There's so many factors involved within it. Means multilateral है, bilateral है और individual भी हैं, लोग ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं. आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देख लो, UNO है, WHO है, और वो काम कर रहे हैं बहुत डीपली इसके अगेंस्ट पूरे दुनिया की ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. नेशनल सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल सिक्योरिटी. आज के कॉन्सेप्ट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी मच रिलेटेड एंड कनेक्टेड विद नेशनल सिक्योरिटी. तो नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जुड़ा हुआ है. आप उसके लिए सबसे बड़ा जो स्टेप उठाया गया, आप देख लीजिए सीरीज से, आप मेरे पीपीटी में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसके लिए प्रयास किया गया. WHO फॉर्म्ड ऑन 7 अप्रैल 1948, जो पूरे ग्लोबल हेल्थ इशू के लिए बनाया गया था WHO 1948 में. उसके बाद IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन अडॉप्ट किया गया 1969 में, जो 73 रिवाइज किया गया 1973 में, 1981 में, 2005 में रिवाइज किया गया. इसी तरह WHO रिपोर्ट 2001 जो बोलता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एपिडेमिक अलर्ट एंड रिस्पांस की बात करता है. जून 2001 में ही UN असेंबली डिक्लेयर डिजीज अ सिक्योरिटी इशू. फर्स्ट टाइम UN असेंबली डिक्लेयर
DGs सिक्योरिटी issued in June 2001. इसके बाद UN कमीशन ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी 2003 में बनाया गया, UN रेजोल्यूशन 1308 on HIV AIDS and रेजोल्यूशन 6398 followed by Secretary's report on global health and foreign policy, WHO report 2207 on a safer future, global security in the 21st century, the International Health Regulations or HR 2005. This is what the governing regulation we have introduced and implemented by basically WHO, adopted by all the member states of WHO, जो बात करते हैं on an agreement between 196 countries, including all WHO member states to work together for global health security. But WHO's this IHR is under question mark by several countries in the case of COVID-19 crisis. ताइवान ने बोला कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो कोविड-19 है वो स्प्रेड होता है ह्यूमन टू ह्यूमन. WHO ने बोला था, शुरू इनिशियली बोला नहीं होता है, लेकिन बाद में WHO ने बोला हाँ होता है. मींस देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द केस. आप बता दें सर जानकारी के लिए कि ताइवान WHO का मेंबर नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है. विदाउट हैविंग मेंबरशिप, Taiwan is playing very important role, accountable role in this health infrastructure or in this health apparatus. तो कहने का मतलब जो मेंबर नहीं हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो रिस्पांसिबल है, अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इरिस्पांसिबली बिहेवियर कर रहा है. एंड हु इज डिक्टेटिंग WHO टू परफॉर्म और टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स? बिकॉज सब से बोल रहे हैं कि आपको चाइना के इन्फ्लुएंस में वहां DG हैं और वैसा काम कर रहे हैं. दैट्स आर्गुमेंट. आई एम नॉट सेइंग दैट इज राइट और रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट हैपनिंग. Member states committed themselves to building core capabilities in areas of national legislation, policy and financing, coordination, national focal point, communications, surveillance, response, preparedness, risk communication and human resources and laboratories. ये कहा गया है कि हर देश, हर मेंबर स्टेट अपने देश में बनाएगा, इस तरह के अपने तरफ प्रिपेयर करेगा जिससे वो किसी तरह से आउटब्रेक हो, कोई भी ऐसा हेल्थ रिस्क हो तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रखे, अपने आप लोगों को बचा कर रखे. IHR also includes specific measures of ports, airports and ground crossings to limit the spread of health risk to neighboring countries. अगर एक जगह कहीं स्प्रेड हो जाता है वो आगे ना हो, इसके लिए भी IHR बात करता है कि इस तरह प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए. बट इन द केस ऑफ वुहान, what happened? Within a month, a lot of people traveled from Wuhan. While Chinese government very much informed about the impact of COVID-19 कि कोरोना का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, चाइना गवर्नमेंट को पता था, फिर भी विद इन अ मंथ कम से कम मिलियंस ऑफ मिलियन ट्रेवल्ड अक्रॉस द ग्लोब. उसको पता हुए मींस ये दिखाता है कि चाइना का कहीं कहीं कुछ मैलाफाइड इंटेंशन था, तभी चाइना इसमें. जबकि IHR क्लियरली बात करता है अगर कहीं आउटब्रेक होता है तो वहां पे इस तरह चीज को रोका जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए. US नेशनल सिक्योरिटी एंड इंफेक्शियस डिजीज, आई डोंट नीड टू रीड दिस, क्योंकि US पहला कंट्री था जहां पे इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया. इवन आज भी आप देखिए किस तरह से ट्रम्प कदम उठा रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट, कि चाइना पे बैन लगा रहे हैं, आप WHO में अपना सपोर्ट किस लिए. आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज अ गुड फॉर रूल बेस्ड वर्ल्ड सिस्टम, इसके तो अच्छा नहीं है. बट फिर भी US को लग रहा है कि जो WHO या जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है आज के टाइम में, इंडियन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने परसों UN में, तो हाँ उन्होंने बोला वी हैव टू रीडिफाइन द एंटायर वर्ल्ड सिस्टम, द ग्लोबल सिस्टम, मल्टीलेटरल सिस्टम. हमें परिवर्तन करने की जरूरत आ गया है, हमें जरूरत परिवर्तन करने की है, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. तो आप यहाँ देखेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूँ. सी इन्फेक्शियस डिजीज एज अ नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट. इंडियन एक्सपीरियंस में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें. 1994 का आप आउटब्रेक का एग्जांपल दिया कि इंडिया आप इसी तरह की एग्जांपल दे सकते हैं. स्ट्रॉन्ग पॉल्यूशन, सार्स H1N1 का केस आया. इन सब केस के समय इंडिया का जो अपना एक सिस्टम है, चीजों को टैकल किया. इवन इन द केस ऑफ कोरोना-19 अपनी सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से इसको टैकल किया है. आज तक ऐसा नहीं है, आज कर रहे हैं सेकंड पोजीशन पे आ गया है. लेकिन आप देखेंगे अभी भी इंडिया की जो मोर्टेलिटी रेट है वो और देशों की अपेक्षा बहुत कम है और हमारा रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है. लगभग कल के डेट में 64% कल का रिपोर्ट है, 63-64% लोग रिकवर कर रहे हैं. मींस दैट इज द गुड थिंग. दिखा रहा है कि आप फिर भी प्रिपेयर हैं. लेकिन जो इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट उस दिशा में काम करने की जरूरत भी है, काम भी कर रही है. लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है इसके लिए कम उठाया जाना चाहिए. भारत जैसे देश में अवेयरनेस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं है, फंडिंग कम होती है. वो आप इस तरह सोच रहे हैं पूरी इकोनॉमी को रोक दें, पूरे देश को हम लॉकडाउन के अंदर ही रखें 8 महीने 10 महीने. दैट इज
क्राइसिस से मर रहे हैं, वी हैव टू बी बैलेंस्ड। हमें इस तरह काम करना, व्यवस्था बनी रहे। आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देते हैं, बहुत सारा काम कर रहा है जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, ओपन डिफेकेशन से बीमारी ही नहीं पैदा होगी, समस्या नहीं होंगी। न्यू हेल्थ पॉलिसी 2015 है, न्यू हेल्थ पॉलिसी 2017 है, ई हेल्थ इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। अब फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप किया गया है, डिजिटल इंडिया हेल्थ केयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप किया गया है, नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी बनाया गया। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन इंडिया, इन आवर कंट्री ओनली। मीन्स बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात 2005 इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का इंडिया पार्ट है। अंडर दैट रेगुलेशन इंडिया हैड डेवलप्ड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। इंडिया ने अपना खुद डेवलप किया हुआ है, और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यूएस है, इंडिया उसके साथ कोलैबोरेट करता है, और किसी तरह कम्युनिकेशन होता है, इंडिया उसके साथ पूरी चीजों को बना करता है। कोविड-19 ग्लोबल सिक्योरिटी, इंडिया रिस्पॉन्स आप देखेंगे किस तरह से इंडिया रिस्पॉन्स पूरी दुनिया में कर रहा है। ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस आप इंडिया हर जगह से अपने आप को फोर फ्रंट रख रहा है। नेबरहुड पॉलिसी इसने किया, अपने देशों को, मोदी जी लोगों को बुलाए, तमाम जो आपके हेड so we have to fight together against this threat COVID-19, और जिसमें लेकिन बाकी देश काफी सपोर्ट किए, लोग काफी देश को बहुत मतलब प्रोएक्टिव, लगभग 150 से ज्यादा, जो मोदी जी खुद परसों की स्पीच में मेंशन किए हैं, लगभग मोर देन 150 कंट्रीज इंडिया हैव प्रोवाइडेड मेडिसिन। आपके सारे कंट्रीज में हैंड सैनिटाइजर्स हो गया, सर्जिकल मास्क हो गया, एंटीबैक्टीरियल ड्रग एचसीक्यू हो गया, जिसको इंडिया ने प्रोवाइड किया है। और एचसीक्यू तो मोर देन 150 कंट्रीज को दिया है इंडिया ने प्रोएक्टिवली। कुछ कंट्रीज ने मांगा, कुछ कंट्रीज नहीं भी मांगा, तो इंडिया ने खुद आगे बढ़ के ऑफर किया और प्रोवाइड किया। मींस जो नेशनल सिक्योरिटी को ऐसे कंसर्न की तरफ देख रहा है कि ये हमारे लोग सुरक्षित हैं या पूरी दुनिया के जो मानवता सुरक्षित है, ऐसी कंडीशन हमें लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इंडिया हैज आल्सो मूव्ड द आइडिया टू क्रिएट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर द सार्क नेशंस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कोविड-19 क्राइसिस। कि भारत ने बोला कि हमें एक की प्लेटफॉर्म बनाए जाने की जरूरत है, जो सार्क कंट्रीज में, बेसिकली सार्क नेशंस में कोविड-19 क्राइसिस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उसको साझा कर सके। इंडिया हैज प्रोवाइडेड मेडिकल असिस्टेंस, और मेडिकल असिस्टेंस किसी नेबरिंग कंट्रीज को किया है प्रायोरिटी बेसिस पे, लेकिन और बहुत सारे कंट्रीज को देने की कोशिश किया और दिया भी। India has been an active or responsible state actor in reaching out, be it initiating virtual SARC meeting and creating the COVID-19 emergency fund. इंडिया ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड कर जनरेट के लिए सार्क कंट्रीज को एग्री किया, और जिसमें सबसे बड़ा स्टेक लगभग $10 मिलियन का इंडिया ने दिया है, बाकी कंट्रीज ने $2 मिलियन, $3 मिलियन दिया है, जबकि इंडिया ने अकेले $10 मिलियन दिया है। The subcontinental giant India has also been sending its medical health professionals and offering technical assistance to so many countries, including Afghanistan. तो इस अफगानिस्तान इसलिए कोट किया कि अफगानिस्तान सबसे ज्यादा हेल्प पाने वाला कंट्री है बांग्लादेश के बाद। बांग्लादेश, अफगानिस्तान दो कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा असिस्टेंस इंडिया दे रहा है, क्योंकि दोनों बहुत ही संघर्षरत देश हैं। इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल्स आर गिविंग हेल्थ ट्रेनिंग टू हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड आल्सो आर एक्सचेंजिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू कंटेन द वायरस। Apart from its medical assistance, India also helped in carrying out rescue operations, namely Vande Bharat mission, INS Kesari, to help stranded people staying outside of the region. India जब पूरी दुनिया अपने आप को बंद कर रहा था, भारत एकमात्र ऐसा देश था जो बाहर रह रहे अपने लोगों को वापस लाने के लिए मिशन चला रहा था, अपने फ्लाइट्स को भेज रहा था, या फिर बहुत बड़े स्तर पे अपने सैनिकों को तैनात किया था जो बाहर के लोगों को वापस लाने के लिए। तो ये दिखाता है इंडिया इज मोर ह्यूमैनिटेरियन देन इकोनॉमिक, कि आप आर्थिक आपकी लालच है, आपकी चाहत है, डिजायर्स हैं, तो इंडिया डिजायर उसमें ज्यादा आर्थिक नहीं है, अपने लोगों की सुरक्षा है, ह्यूमैनिटी सुरक्षा है, इंडिया इस पे प्रायोरिटी देके काम कर रहा है। तो कहने मतलब पूरा सीन आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कंक्लूजन अगर मैं आपको आप कंक्लूड करता हूं, आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन बाय सेइंग फ्यू थिंग्स। नेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट वन अनदर टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस फ्रॉम रीचिंग देयर बॉर्डर्स। मींस सब देश एकजुट होकर ये निर्णय पहुंच चुके हैं कि अगर कहीं पे कोई राइज होता है डिजीज का, उसको वहीं के तक सीमित रखना है, दूसरे देश को इन्फॉर्म रखना है, जिससे वो ज्यादा स्प्रेड ना हो और चीजों को समय पे ही टैकल की जा सके। द पॉलिसी मेकर्स हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द बॉर्डर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट the transition and infectious diseases and public health real map. Growing concern over the issue of national security has resulted in heightened vigilance, better disease intelligence, and strengthened capacity to respond when outbreaks occur.
the debate of human security, this is what important I'm going to read. Freedom from want, freedom from fear, and freedom from hunger. So human security में बात किया गया था, that has been included another aspect, freedom from diseases. कि आप freedom from disease भी जरूरी है, उसके लिए भी काम करना है. Finally, it could be said that every government has started recognizing and protecting its people from infectious disease threats and considering it as integral part of national security. इसके लिए आपको strengthening global mechanisms की तरफ काम करना है, medical advancement and innovations को काम करना है, capacity building लिए काम करना है, global coordination के लिए काम करना है. There's so many things we have to do for this to keep ourselves safe and protected. अगर हम national security बात करते हैं, उस context में हमें काम करने की जरूरत है. Thank you, Vidya. Sorry, I have taken more time. What you have allotted. Sorry. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your thought-provoking speech, sir. Now I will invite Dr. Upendra Prakash, the Head of Department Political Science, SKR